السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز پروگرام کے پی ڈائری کے ساتھ، اور آج ہم موجود ہیں وادی کمراٹ میں۔ یہاں کی خصوصیت اس کے جنگلات، اس کے پہاڑ، اس کی خوبصورت مناظر ہیں۔ ہر جو بھی جنگلات ہوں وہ ہر جگہ کی خصوصیت ہوتے ہیں اور وہی اس کا اٹریکشن پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اللیگل ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ جنگلات کسی بھی علاقے کا اٹریکشن پوائنٹ ہے۔ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور خصوصاً کے پی گورنمنٹ نے اللیگل ڈیفارسٹریشن اور پیڑوں کی کٹوتی کے لیے سخت سے سخت اقدام کیے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پولوشن ریڈیوس کرنے اور سڈن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہمارے علاقوں میں سخت گرمی اور سخت سردی آ رہی ہے ایکسٹریم لیول پہ، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بلین ٹری سونامی کا بھی آغاز کیا ہے، جس کا ٹارگیٹ ہے 10 ارب درخت لگانا۔ ضلع اپردیر میں اس وقت سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں سیاحتی مقام کمراٹ، لاموتی، جندرئی، بیاڑ، بریکوٹ، گوالدئی، تحصیل کلکوٹ اور کوہستان سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ ڈوگ درہ، شہور، تحصیل شرنگل، بارکند، بیلا، خرو، صدیق بانڈا، جڑجوڑے، خاتن درہ، تحصیل دیر، کارو درہ، درہ نہاگ، درہ سکائی لینڈ، تحصیل واڑئی شامل ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 سے 55% رقبے پر جنگلات پائے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ڈیفارسٹریشن سے مزید پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وادی کمراٹ تو جنگلوں سے اور درختوں سے بھرپور ہے، لیکن یہاں بھی ہمیں کچھ چیزیں ایسی چند نظر آتی ہیں کہ جو ڈیفارسٹریشن میں یا کلائمیٹ چینج پہ امپیکٹ ان کا آ رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں ایک سیاح موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کی گرینری کو کس طرح پایا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں سر محمد حسن اور میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں۔ سر، آپ سیالکوٹ سے یہاں آئے ہیں کے پی کے اس علاقے میں، آپ نے جنگلات کو کس طرح پایا ہے؟ کیا آپ کا پہلا تاثر کیا تھا؟ جی ہاں، میں سیالکوٹ کا شہری ہوں اور میں نے کمراٹ کے بارے میں بہت سنا تھا، اس لیے میرا دل کیا کہ ہم ادھر کا وزٹ کریں۔ ہم ادھر آئے ہیں، ادھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت جنگلات ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ ادھر جو ہے نا بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنگلات فریش ابھی کاٹے ہوئے ہیں، درخت کاٹے ہوئے ہیں، وہ اس سے میں بہت مایوس ہوا ہوں۔ جو ہے نا ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پر نظر ثانی کرے اور اس کو کاٹنے سے منع کیا جائے۔ اگر ایسا چلتا رہا تو پھر تو بہت جلد یہ جنگلات ختم ہو جائیں گے اور جو سیاح آتے ہیں ان کے لیے سیر و تفریح کے لیے کوئی مقامات نہیں رہیں گے۔ آپ جو ہیں یہاں جنگلات کے اٹریکشن کے لیے آئے ہیں، کس اس پہ آپ آئے ہیں؟ آپ ہائیکنگ کے لیے آئے ہیں؟ جی ہائیکنگ کے لیے تو نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ ہم ویسے وزٹنگ کے لیے آئے ہیں علاقے کے لیے، جیسے آگے کالا چشمہ وغیرہ ہے۔ کمراٹ وادی ویلی کا بہت نام سنا تھا، اس کے علاوہ اور علاقے وزٹ کرنے کے لیے جنگلات دیکھیں آگے ادھر۔ پہلے آئیڈیا نہیں تھا کہ جنگلات بہت خوبصورت ہیں ادھر کے، لیکن اب ادھر آ کے آئیڈیا ہوا کہ جنگلات بہت خوبصورت ہیں ادھر کے، لیکن بہت مایوسی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ جب جنگلات انہوں نے درخت وغیرہ کاٹے ہوئے ہیں، اس سے تو جنگلات کو بہت نقصان ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جو بیسک ریزن ہے یہ جنگلات کاٹنے، کیونکہ یہاں کے مقامی لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی کا نہیں ہے، یہاں گیس نہیں ہے، تو وہ اپنا کھانا وغیرہ، پانی گرم کرنا ان جنگلات کی کٹوتی پہ ہی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن ملک کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے اور نئے جنگلات اگانے کے لیے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت بھی ضلع اپردیر میں لاکھوں پودے لگائے جا رہے ہیں، تاکہ ضلع مزید سرسبز و شاداب اور جنگلات کا مسکن بن سکے۔ تاہم ان جنگلات کی حفاظت کے لیے محکمہ جنگلات اپردیر فارسٹ ڈویژن اور شرنگل فارسٹ ڈویژن کے اہلکار و عملہ اپنے محدود وسائل میں نہ صرف کوشاں ہیں، بلکہ مزید فارسٹیشن کے لیے ضلع کے مختلف علاقوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت
नर्सरियां लगाकर सालाना करोड़ों पौधे उगा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में प्लांटेशन करके बंजर इलाकों, खाली पहाड़ और हजारों एकड़ अराजी पर लाखों की तादाद में नए पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि इलाके में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के साथ साथ इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा हो सके। जिला अपर दीर में जंगलात का वाफिर मिकदार में पाया जाना ही जिले के हुस्न और सयाहत की जन्नत और सयाहत के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है और यही वजह है कि मुल्क भर से सालाना लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को दीर के सियाहती मकामात कुमराट, लवारी टाप, मीना समेत मुख्तलिफ मकामात आते हैं। ताहम मकामी अफराद और सयाह सियाहती मकामात पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई से परेशान और इसे इलाके का हुस्नमान करने की कोशिश करार देते हुए हुकूमत से टिम्बर माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं ताकि जंगलात माफिया से खूबसूरत जंगलात महफूज रह सकें और इलाके का हुस्न बरकरार रह सके। जी हम इधर आए हैं, हमने काफ़ी इंजॉय किया है। पहले हम सवात से आते वक्त रास्ता बहुत डेंजरस था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आते रहे हैं आबादी खूबसूरत होती रही है। आप देख सकते हैं जैसे जंगलात वगैरह सारा कुछ, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया है इसको। उसके बाद काफ़ी अभी इंजॉय कर रहे हैं आगे। अब अभी हम आगे भी जाएंगे, वहाँ भी इंजॉय करेंगे, तो देखेंगे आगे क्या क्या हमें मिलता है। फिलहाल हमारा पहला टूर है। आज यहाँ के जंगलात को आपको नजर आ रही है यहाँ ज़्यादा ग्रीनरी है या यहाँ जानवर कम है, क्या आपका क्या फीडबैक है? देखा ना तो हमें ये लगता है कि यहाँ जानवर वगैरह काफ़ी कम है, लेकिन सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ, लेकिन जानवर की तादाद काफ़ी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि इन साहिब ने हमें बताया है कि यहाँ जंगलात हैं, जानवर बहुत कम है। जो मेन रीज़न यही है हमारे पास कि क्योंकि जंगलात की कटौती है तो जानवरों ने अपनी रिहाइश के लिए कहीं और जगह तो देखनी है, जिसका ये रीज़न है कि जानवर यहाँ पहले के मिकदार में कम है। ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि आप देखिए तेज़ हवा चल रही है, ये इसी वजह यहाँ आसपास तमाम जंगलात हैं और ये खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, इनसे हम यहाँ के मौसम का, यहाँ के जंगलात का और सेहत के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम और आप कहाँ से हैं? शराज अहमद मेरा नाम है और मैं सियालकोट से। सर आप यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए थे, आपको किस तरह लगा यहाँ के जंगलात को देख के, फॉरेस्ट को देख कर? जंगलात माशाल्लाह ठीक हैं, गवर्नमेंट कुछ कटे हुए हैं बहुत ही, लेकिन फिर भी बेहतर है। आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो लोग काट रहे हैं इसको, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? इसे काटना नहीं चाहिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको मत काटे ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो बराबर रहे। इसके अलावा से पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर रहा है। आप यहाँ इतना खूबसूरत मौसम, कभी हवाएं, कभी बारिश, कभी कुछ, ये इसी वजह से है कि यहाँ बहुत जंगलात हैं और उन जंगलात को अगर हम उनमें कमी करते जाएंगे तो हम डैमेज की तरफ, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। महकमा फॉरेस्ट अपर दीर डिवीजन और ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और लेविस के ताउन से जंगलात की गैर कानूनी कटाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में मसरूफ़ हैं और सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। फॉरेस्ट के ज़राए के मुताबिक जंगलात माफिया के खिलाफ कार्रवाई और भरपूर और बरवक्त हिफाजत यकीनी बनाने में महकमे को कम वसाइल और अमले में मुश्किलात का सामना भी है।
ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास यहाँ कुमराट में जो ज़्यादा तादाद है वो पंजाब से आए लोगों की आ रही है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ एक सयाह मौजूद है जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है। इनसे हम जानते हैं कि इनको कैसा लगा यहाँ कुमराट, वादी कुमराट में आके, स्पेशली यहाँ जो इतने खूबसूरत लाखों की तादाद में दरख्त हैं, इनके बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं सियालकोट से हूँ। तो मैं इधर आया हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। बस थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है जंगलात की वजह से, बाकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। जंगलात की वजह से आपको क्या तकलीफ़ पेश आई? जंगलात की तरफ से हर तरफ देखा जाए तो थोड़ी दरख्त के बाद एक दरख्त काटा होता है इन्होंने, तो उसकी वजह से बहुत एक चीज़ खूबसूरत है, उसको खूबसूरत बनाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। नाजरीन, एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में गर्मी की एक शदीद लहर दौड़ रही है। यही तो इस जगह खूबसूरती है कि जहाँ पूरे मुल्क में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ अब इस महीने में भी लोग लकड़ियों से आग जलाकर अपने आप को गर्म रख रहे हैं। खुशकिस्मती से जिला अबरदीन सूबे में कीमती दरख्तों मसलन देवदार, कायल और चीड़ के जंगलात से मालामाल इलाका है, लेकिन जंगलात की बेदरीग गैर कानूनी कटाई रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों से मकामी अफराद का अपने घरेलू ज़रूरियात और इस्तेमाल में भी सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं जंगलात पर पाबंदी की आड़ में फॉरेस्ट एहलकारों का मकामी अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है और इसे घरेलू ज़रूरियात और घरों की तामीर के दौरान मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि जंगलात की हिफाजत यकीनी बनाने में फॉरेस्ट एहलकारों के साथ मकामी एहलकार खुद भी ताउन करते हैं और बेशतर जंगलात वाले इलाकों में अवामी सतह पर कमेटियां बनाई गई हैं ताकि जंगलात की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग को रोक सकें। ये जंगलात न सिर्फ हमारा कौमी असासा हैं, बल्कि हमारे इलाकों के हुस्न का झूमर है, जो जिले की सियाहत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। अबरदीन में बेसिकली हमारी दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, एक अबरदीर फॉरेस्ट डिवीज़न और दूसरा दिर कोस्तान फॉरेस्ट डिवीज़न। इलाका चूँकि ऐसा है कि हिली इलाका है सारा, यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ है वो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ है, ज़्यादातर उनका इन्हिसार इन जंगलों पर होता है और उनके राइट्स भी है इन जंगलों में, क्योंकि लोगों के यहाँ पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। इस वजह से अक्सर अवकात से जो ज़्यादातर जंगल की कटाई होती है तो ज़्यादातर आम तो तासुर ये होता है कि ये टिम्बर माफिया या इस तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसा इस तरह नहीं होता। लोग यहाँ पर जो है अपने जलाने के लिए या घर बनाने के लिए वो दरख्त को काटते होते हैं और बाकायदा गवर्नमेंट हम अपनी जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो हमारे पास लॉ है, कानून है, उसके तहत कानून पे कार्रवाई करते होते हैं। इस दफ़ा जो फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हीं ज़रूरियात को देखते हुए ये बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबा है ये लॉन्च करवाया है। तो इसका हमारा बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के जो प्राइवेट ज़मीनें हैं, उनके अपनी ज़ाती ज़मीनें, उन पे उनके लिए जंगल उगाए, ताकि उन्हीं जंगलों से फिर वो अपनी रोज़मर्रा घरेलू ज़रूरियात हो या उनके घर बनाने के लिए ज़रूरियात हो वो उनसे पूरी हो सके। इसी मंसूबे के तहत हमने अपर-दीर में जो हमारा ज़िला है, इसमें जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है फॉरेस्ट का, उसमें हमने इस साल 570 हेक्टेयर पे प्लांटेशन की हुई है। इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हम करते होते हैं, जो ज़मीनी कटाव या सैलाब की वजह से या कोई दूसरी वजह से उनको भी हम उनके ट्रीटमेंट करते हैं, बेड एंड स्टेबलाइजेशन उनको कहते हैं। जो हमारे ऑलरेडी नेचुरल फॉरेस्ट है उनमें हम इंक्लोजर्स बनाते हैं। हमारा जो डिवीज़न है, हमारा बीट पे हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली तकसीम करते हैं। एक एक इलाका जो होता है तकरीबन हर एक फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर के हवाले होता है। वहाँ पर जो भी कोई इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई होती है
तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, उन पर डैमेज रिपोर्ट हम काटते होते हैं। फिर हमारा असिस्टेंट कमिश्नर जो इलाके का होता है वो फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से बैठा होता है, तो हम चालान और डैमेज रिपोर्ट साथ करके मुलजिम को उसके सामने पेश कर देते हैं। और जो भी मुलजिम होता है, तो हमारा स्टेटिस्टिक तो बहुत ज़्यादा है, अभी वो मैं आपको गिनाना चाहूँ तो काफ़ी टाइम उस पर लगेगा, लेकिन जो भी हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, हम उनको जेल भेजते होते हैं, उन पर जुर्माने लगाते हैं। एग्जैक्टली राउंड द क्लॉक हमारी इस पे नज़र होती है। हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट कमिश्नर है, फ़ौरन उनको एक दरख्त जब कटता है तो दूसरे को काटने हम नहीं देते। हमारी फ़ोर्स पहुंच जाती है, फॉरेस्ट की फ़ोर्स पहुंच जाती है, और इस पे जिस तरह के ऊपर से विज़न है कि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, तो हम भी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और अंडर द लॉ उनको बुक करते हैं। और इस पे हम सब की नज़रें, हमारी अपनी इंटेलिजेंस भी है लेवी की, वो भी हमें रिपोर्ट करती है, तो हम किसी को ये दरख्त काटने नहीं देते। और कोशिश हमारी ये होती है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कि हम गाहे बगाहे दरख्तों की प्लांटेशन भी करते हैं जिधर ये काम है। जो दीर बाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 55% लैंड पे फॉरेस्ट है, मतलब दरख्त हैं। 55% बहुत ज़्यादा है। आप देख लें पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, और फिर स्पेशली जो यहाँ पे जंगलात है उसके साथ कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगलात हैं, 55%। ये बात रही इसकी फॉरेस्ट कटिंग की, तो ये है कि यहाँ पे हुकूमत ने तो, इमरान खान ने तो बिल्कुल, इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बिल्कुल सख्त पाबंदी लगाई है कि बिल्कुल एक दरख्त भी नहीं हटना चाहिए। सयाह, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के दीगर इलाकों बशमूल इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ यख बस्ता मौसम एंजॉय करने और कुदरती मनाजर देखने आते हैं, और सियाहत को इन दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाकों के बासियों के रोजगार का अहम जरिया बन चुका है, जिसकी हिफाजत इन इलाकों के कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से ही हो सकती है। नाज़रीन, केपी डायरीज के इस प्रोग्राम के साथ हम आप तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि रिहायशी लोग हैं, चूँकि हमने डिफॉरेस्टेशन का अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, तो उनका रिहायशी लोगों का ये रद्द अमल है कि उनको रोज़मर्रा के काम, गैस और खाने पकाने के लिए वहाँ गैस की सहूलत नहीं है, तो उस गैस को यूटिलाइज़ करने के लिए वो लोग यहाँ से लकड़ी काट कर लेके जाते हैं ताकि उसका कोई सब्सटीट्यूट उनके पास हो। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और ख़ुसूसन वज़ीर आज़म साहब ने अपर दीर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में लाखों पेड़ जो हैं प्लांट किए हैं, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक सिटीज़न होते हुए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ दें। हमें चाहिए कि जितना हमसे हो सके हम कुदरत में, अपने मुल्क में अपना इनपुट दें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।